السلام علیکم، مبین چودھری آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نیو ولاگ کے ساتھ۔ تو یہ ولاگ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، جو بھائی ڈنکی میں انٹرسٹنگ رکھتے ہیں۔ تو ایک ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی تھی ترکی سے اٹلی کی، جو ڈنکی عدنان بھائی کی، وہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی۔ تو بہت سارے دوستوں نے ویڈیو پسند بھی کی ہے اور بہت سارے کمنٹ کیے ہیں کہ آپ وہ بھی ویڈیو اپلوڈ کریں جو پاکستان سے استنبول کے ایسے پہنچی یہ والی ڈنکی جو ہے۔ تو اس وقت عدنان بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو بہت ایک اور بھی بہت خوشخبری کی بات ہے، عدنان بھائی نے چینل بنایا یوٹیوب پہ، تو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا آپ کو ان کے چینل کا، جلدی سے بھائی سبسکرائب کریں۔ تو آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں کہ عدنان بھائی کا کیسا رہا ہے سفر پاکستان سے استنبول۔ السلام علیکم عدنان بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ جی شکر اللہ پاک کا، آپ سنیں؟ ٹھیک ٹھاک شکر الحمدللہ۔ تو عدنان بھائی کیسے آپ پہنچے استنبول؟ یہ آپ کیسے سفر گزرا ہے پاکستان سے؟ آج ہم آپ کو یہ ساری بات جو ہے نا اردو میں بتائیں گے، کیونکہ آپ کے سارے فینس کہتے ہیں، کافی دوست کہہ رہے تھے کہ آپ نے جو یہ ولاگ بنانا ہے نا پاکستان سے استنبول والا، جو یہ ولاگ ہے یہ آپ اردو میں بنائیں۔ تو جو پہلے ہم نے اپلوڈ کیا تھا وہ ہم نے پنجابی میں بنایا ہے۔ تو جی عدنان بھائی، ہم پاکستان سے، ہم نے صبح، میرا منڈی باولدین سے بیسیکلی تعلق ہے، تو منڈی باولدین سے صبح 5 بجے نکلے تھے۔ 5 بجے ہم نے لاہور کی بس وہاں سے پکڑی تھی، تقریباً 10 بجے کے قریب ہم لاہور پہنچ گئے تھے۔ اچھا، وہاں پہ تھوڑا سا ہم نے ٹائم اسپینڈ کیا، بس مسجد گئے، مینار پار کے، پھر اس کے بعد ہم گئے، ہم نے وہاں سے اپنی ٹکٹس بک کروائی، کیونکہ وہ آفس 2 بجے کھلنا تھا جہاں سے ٹکٹس ملنی تھی ہمیں گوادر کی۔ تو پھر ہم نے وہاں سے ٹکٹس بک کرائی، شام کو 5 بجے ہماری جو تھی نا بس تھی گوادر کی، ہاں گوادر کے لیے ہم نے نکلنا تھا۔ تو اس میں پھر جب وہ شام کو 5 ہوئے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کی بس آ گئی۔ ہم پہلے ویٹ کرتے رہے، کافی دیر بیٹھے رہے۔ تو ہم پھر وہاں سے 5 بجے نکلے، ہم اس بس میں بیٹھے، تو سارے ہی نا جتنے بھی تھے نا تقریباً وہ سارے بلوچی پٹھان تھے، سب مکس تھے۔ ہم صرف 2 اس بس میں پنجابی تھے، سارے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ تقریباً بس میں بیٹھے ہوئے 4-5 بندوں نے ہم سے یہ بھی پوچھا تھا کہ تم ڈنکی کے آ رہے، ان کو اردو آتی تھی، زیادہ تر پنجابی میں بات وہ کر رہے تھے، پشتو میں بات کر رہے تھے، یا بلوچی میں، جو بھی ان کی لینگویج تھی اپنی۔ اچھا، تو پھر اس کے بعد ہم تقریباً 1.5 دن سفر کرنے کے بعد گوادر پہنچے تھے۔ اسی بس کے اندر 1.5 دن ہم نے سفر کیا تھا، ایک پوری رات کیا تھا، اور پھر 5 بجے سے جب بیٹھے تھے وہ ساری رات بھی آئی، پھر آ گئی دن ٹائم، ہم تقریباً 2 بجے کے قریب پہنچے تھے وہاں پہ۔ 2 بجے کے قریب آپ گوادر 2 بجے کے قریب ہم گوادر پہنچ گئے تھے۔ وہاں سے گوادر سے پھر ہم جب وہاں پہ ایک ٹرمینل پہ اترتے گئے تھے، ہم نے اپنے ایجنٹ کو کال کی، ہمارے ایجنٹ نے بولا ٹھیک ہے میں آپ کو ریسیو کر لیتا ہوں۔ وہ ٹرمینل پہ جب ہم اترے تھے تو انہوں نے ہمیں ٹرمینل پہ آ کے ریسیو کیا۔ تو ٹرمینل پہ وہ ایک رکشے پہ آیا تھا، اس نے ہمیں رکشے میں بٹھایا، وہ بہت شہر سے بہت دور ایک ہوٹل تھا، وہاں پہ ہمیں لے گیا۔ اس ہوٹل پہ اس نے ہمیں رکھا، وہاں پہ پہلے ہمارے سے پہلے موجود تھے 4 بندے ہم سے پہلے موجود تھے اسی روم میں۔ تو یہ ہمیں تو بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی، کیونکہ ہم نے کھانا وغیرہ کچھ بھی نہیں۔ اچھا، راستے میں آپ کو کھانا وغیرہ نہیں ملا؟ کنٹینیو بس چلتی تھی؟ کنٹینیو بس چلتی رہی، ایک جگہ پہ بس رکی ہے تو وہاں پہ بھی SSB کے کمانڈر کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے بولا تھا کہ تم لوگ نیچے نہیں اترنا، کیونکہ انہیں بھی پتہ چل گیا تھا کہ ہم لوگ ڈنکی والے ہیں۔ نارمل جو ٹکٹ تھی نا وہ تھی وہاں پہ 1500 کی، تو انہوں نے ہم سے 3-3 ہزار روپے لیا تھا۔ انہوں نے بولا تھا کہ ہم آپ کو فل پروٹیکشن کے ساتھ وہاں پہنچا دیں گے۔ اس نے بس ہمیں، جو بس کا کنڈکٹر تھا، اس نے ہمیں ایک بوتل اور پانی کی اور ایک کولڈ ڈرنک تھی کوکا کولا کی بس، اور ساتھ میں کچھ بسکٹ وغیرہ اس نے دیے تھے، وہ اس نے اپنے پاس سے دیے تھے، اس کے چارجز اس نے ہم سے نہیں لیے تھے، تو وہی ہم نے کھایا تھا، اس پہ گزارا کیا تھا۔ ہم پہنچتے گئے، ہمیں بہت زیادہ بھوک لگی تھی، ہم نے سب سے پہلے اس کو کہا ہمیں کھانا لا کے دو، پھر وہ کھانا لینے کے لیے چلا گیا، تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد آیا۔ وہ دال اس نے ہمیں دی تھی، وہ دال ایسی تھی نا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا اس میں پانی ہے یا دال ہے، وہ پانی کو ایسے ایسے کر کے اس میں سے ڈال کے چھوٹے چھوٹے دانے ڈھونڈنے پڑتے تھے۔ روٹی تھی، اتنی بڑی بڑی روٹی تھی، اس نے وہ ہمیں دی، اس نے بولا کھاؤ، وہ تو پھر کھائی بھی نہ گئی، وہاں سے بھی ہم تقریباً بھوکے ہی نکلے وہاں سے۔ تو ایک یہ بھی بات ہے، کتنے پیسے ڈنکی والے نے لیے تھے تو پاکستان سے؟ ڈنکی والے ہر ایجنٹ اپنے مختلف پیسے لیتے ہیں، میں تو آیا تھا تقریباً اپنے دوست کے ساتھ، تو اس نے مجھے بہت نارمل ریٹ میں پہنچا دیا تھا وہاں سے یہاں تک اٹلی تک، میری اس کے ساتھ اٹلی تک کی ڈیل ہوئی تھی، اس نے نارمل ریٹ میں پہنچا دیا تھا، جتنے نارمل سب ایجنٹ لیتے ہیں نا ہمیں بھی اتنے ریٹ میں پہنچا۔ باقی جن کے اپنے ریلیٹیو وغیرہ ایجنٹ ہوتے ہیں یا جن کا بہت زیادہ کلوز تعلق ہوتا ہے ایجنٹوں کے ساتھ، وہ میرے کافی رستے میں دوست
वो बताते थे कि हम 4.5 लाख रुपए में इटली आए, हम 5 लाख रुपए में इटली आए, कोई कहता मैं 2.5 लाख रुपए में इटली आया हूँ। तो ये भी कहता है हम फ्री में भी आए, हम फ्री में भी आए हैं। क्योंकि अब ज़ाहिर बात है, जिस बंदे का अब मेरा अगर कोई मामू या चाचू कोई भी एजेंट होगा तो वो मेरे से ज़ाहिर बात है पैसे तो नहीं लेगा, वो बंदे बनाएगा, उन बंदों से पैसे लेगा, उन बंदों से वो थोड़े से ज़्यादा लेगा, जिसमें वो मेरा भी बजट निकाल लेगा। हर एक का अपना अपना डिस्ट्रिक्ट, हर एक का अपना अपना एक सिस्टम होता है। जो हमारे साथ इटली में तक लड़का आया था ना, ये शिप जिस शिप में हम आए थे कि उसका सगा मामू था जो उसको भेज रहा था, उसको भी हमारे साथ ही उसने भेजा था। इसलिए वो हमारी ज़रा गेम जो थी वो और ज़्यादा सिक्योर हो गई थी, और ज़्यादा सेफ हो गई थी, उसमें हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल गया था क्योंकि वो हमारे साथ थे। वैसे तो बेसिकली ये होता है ना, अगर शिप वगैरह ख़राब हो जाए तो ये लोग पकड़वा देते हैं, ये कहते हैं ठीक है अब वहाँ पे दूसरा शिप जाएगा तब ही हमने जान पकड़, छुड़वाते हैं, वैसे ही पकड़े जाते हैं। वो पहले ही डील कर लेते हैं कि जी हमने आपको बंदे जो है ना जुनान सेफ पहुँचा देते हैं, फिर जुनान से आगे इनको डंके लगवाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमें 2-2 लाख रुपये देना होगा। अक्सर एजेंट ऐसे कहते हैं, वो 2-2 लाख रुपये भी ले लेते हैं क्योंकि आपने गारंटी पहले रखवा दी होती है, वो उसमें से 2-2 लाख रुपये काट के बाकी आप करा लेते हैं। फिर वो आपको उधर बोस्निया वगैरह वाली साइड से भेजते हैं, वो बहुत लंबा रास्ता है, वो बहुत उसमें वो सारा पैदल है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा जलालत बर्दाश्त करनी पड़ती है। ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट रास्ता है, इसमें हम 9 दिन में पहुंच गए थे। बाकी काफ़ी लड़के यहाँ पे मेरे पास आते रहते हैं जो डंकी लगा करते हैं। ये ऊपर मेरे थोड़ा सा दूरी यहाँ से कैंप है, वो बताते हैं वो बोस्निया से हैं, वो कहते हैं हमें 6 महीने हो गए, साल हो गए बोस्निया से इधर आते आते। अच्छा फिर ग्वादर के बाद फिर क्या हो जब खाना वगैरह आपने खा लिया? वो खाना तो खैर थोड़ी सी रोटी ही खाई थी, वो भी कोका कोला के साथ, क्योंकि डंकी में भाई अगर आप सोच के आते हैं ना कि आपको खाना बहुत अच्छा मिलेगा, आप बहुत खुश रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं ये होता। झूठ है। एजेंट जो है ना, अब जाहिर बात है एक दुकानदार जो है वो अपना कस्टमर बनाने के लिए आपको बहुत सारी बातें करता है, बहुत सारे आपको फ्यूचर एक चीज़ के बारे में बताता है, ये फुल प्रोटोकॉल दे रहा है, प्रोटोकॉल, वो सिर्फ एक प्रोटोकॉल होता है, वैसा डंकी में कुछ भी नहीं होता है। जो हम सोचते हैं वैसा कुछ भी नहीं डंकी में होता है। बहुत सारे बंदे हिम्मत हार जाते हैं, वो वापस चले जाते हैं आधे रास्ते से, वो कहते हैं हमने नहीं जाना। हमें उसने वो खाना दिया था, उसको भी मैंने आधी रोटी खाई थी, वो भी कोका कोला के साथ। उसके बाद वहाँ से हमको उसने शाम को निकाला था। अच्छा। हम तकरीबन 4 लड़के पहले वहाँ पे मौजूद थे और 2 हम थे, 6 लड़के थे, 2 ऊपर से बाद में आए थे, वो मुल्तान के लड़के थे 2, तो टोटल हम 8 लोग हो गए थे। तो एक कैरी डिब्बा वो लेके आया था, जो सुजुकी के कैरी डिब्बे नहीं, नॉर्मल जो पाकिस्तान में कैरी डब्बे चलते हैं घरेलू, वो लेके आया था। तो उसमें उसने साइडों पे जो है ना पेपर रखा हुआ था, ब्लैक कलर का पेपर रखा हुआ था। तो वो सारा यानी कि बंद था, उसके शीशे वगैरह बंद थे, जैसे शीशे वगैरह पर ब्लैक पेपर लगा होता है ना, वो लगा हुआ था। उन्होंने उसके अंदर हमें बिठाया। उसके अंदर हमें बिठाने के बाद हम 8 लड़के, वो आपको पता है एक छोटा सा डिब्बा होता है, उसमें 8 लड़के बड़े मुश्किल से एडजस्ट करते हैं, सीटें वगैरह नहीं थी उसके अंदर। वो हम 8 लड़कों को बिठा के उसने फिर जो दरवाज़ा होता है ना बैक साइड पे, उसके पास उसने कैन रखे थे, ऑयल के कैन थे उसके पास, उसने वो जोड़े हैं ताकि कोई भी खोले तो उसको वो ये कैसे लगे इसके अंदर ऑयल है, इसके अंदर बंदे वगैरह ऑयल ट्रांसफर वगैरह वो। तो वो फिर उसने हमें बिठाया, वो हमें ले गया। फिर हमें नहीं पता चला कि वो हमें कहाँ ले गया, क्योंकि फिर उसके बाद अंधेरा भी हो गया था। अंधेरे में हमने सारा वो सफ़र किया था, तकरीबन कम से कम ना 7 से 8 घंटे वो लगातार चलते ही रहा था, उसने ड्राइव करते ही रहा था। फिर हमें वो एक, आपको फीलिंग कैसी आ रही थी उस टाइम? बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा उलझन हो रही थी, पानी पिए जा रहे थे हर बंदे। ये नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, क्योंकि हर जगह पे ग्वादर में जिन लोगों ने पहले डंकी जो लगा चुके हैं वो कामयाब नहीं हुए, या जो लोग कामयाब हो चुके हैं उन सबको पता है कि ग्वादर में वो SSG कमांडर्स भी होते हैं, आर्मी वाले, नॉर्मल आर्मी वाले भी होते हैं, और काफ़ी सख्त सिक्योरिटी होती है। और इनकी एक अपनी उन्होंने फोर्स जो ग्वादर वालों ने बनाई है, ग्वादर और बलूचिस्तान पे होती है, उसको वो मेरे ख्याल से कहते हैं वो हाई कोर्ट, कुछ इस तरह का उसका अजीब सा नाम है, अब तो मुझे याद भी नहीं है, इतना अच्छा हो गया, 4-5 साल हो गए हैं, तो जेन में भी नहीं है वो उसका। अच्छा, तो फिर उसके बाद हम तकरीबन वो सफ़र करने के बाद हमें एक वीरान से इलाके में ले गए थे। वो उधर एक कमरा बना हुआ था, एक छोटा सा कमरा था, और उसकी चारों साइडों में दीवारें थी, और दीवारें तकरीबन आप इतना समझ लें कि एक मुरब्बा जो था ना ज़मीन का, उसकी चारों साइडों पे दीवारें थी, और उसके अंदर वो एक छोटा सा कमरा था।
उस कमरे के अंदर ये है कि वो मिट्टी का कमरा था, थोड़ी सी उसके अंदर ठंडक थी, थोड़ा सा सुकून था। अच्छा, वहाँ जब पे आपने डंकी लगाई थी उस वक्त सर्दी का मौसम था या गर्मी का? गर्मी 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 का मौसम गर्मी था? क्योंकि वहाँ पे सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं थी ग्वादर वाली साइड पे। जब वैसे आगे मौसम हम गर्मी है सर्दी का था? हाँ, मौसम सर्दी का और गर्मी का दरमियाना मौसम था। हमने जब डंकी लगाई थी, मैंने तकरीबन जून जुलाई में डंकी लगाई थी, नॉर्मल मौसम था। फिर आगे जब इस्तांबुल पहुँचे थे, इस्तांबुल जाते जाते वो काफ़ी वहाँ पे मैं काफ़ी टाइम लग गया था, तकरीबन 1 महीने बाद हम इस्तांबुल पहुँचे थे, क्योंकि हमारे साथ रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी हुई थी। हमारी 2-3 गाड़ियाँ पकड़ी जाती थी, जब भी भेजते थे वो गाड़ी पकड़ी जाती थी। तो इस तरह करके वहाँ पे थे वो सारे जो भी एजेंट होते हैं वो सारे नशेड़ी होते हैं। वहाँ पे वो जी एक बंदा आया, वो चीज़ें लेके आया थोड़ी सी, वो कहता है ये इतने की मैंने देनी है, ये इतने की देनी है। अब ज़ाहिर बात है, बंदा अब कहता है यार मुझे भूख लगी हुई है, ये चीज़ अच्छी है, मैं ले लेता हूँ। वो केक और बिस्कुट लेके जाते हैं, उनको पता होता है कि वो उनके पास पैसे हैं। वो आपको खाना इसलिए पीछे से ठीक नहीं खिला के लाते ताकि ये आगे जाके ये हमारी चीज़ें लें। वो एक 10 रुपये वाला बिस्किट वहाँ पे उसने हमें 100 रुपये का एक दिया था। तो फिर उसने वो हमें दिए, हमने वो खाए। वो खाने के बाद कुछ होश आया हमें। फिर हम लड़के थे, सबकी आपस में सलाम दुआ बन गई थी। सबको पता था कि यार हमने अब साथ जाना है, हम अब यूरोप तक हम सब साथ हैं, हम सब का एक ही मिशन है। तो हम लोग आपस में एक दूसरे से मिल बांट कर लेते हैं। हम सब ने मिल बांट के पैसे बनाए। हमने एजेंट को पहले बुलाया, एजेंट को हमने प्रोटोकॉल दिया। हम अब 8 बंदे उसको प्रोटोकॉल दे रहे थे, उसको चमका रहे थे, तुम बहुत अच्छे हो, ये है वो है, तुम तो ये है, तुम वो, तुम ऐसे हो, तुम फलां हो। तो फिर जुमे वाला दिन था, अगले दिन जुमे वाला दिन था। उस रात तो हम सो गए थे जाके। जुमे से पहले उठे, हमने उसको काफ़ी ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया। फिर उसने हमें पानी ला के दिया एक, जैसे वो जिस डाले में हमें लेके गया था ना, जिस वो सुजुकी में हमें लेके गया था, उसी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी वो भर के लेके आया था। वो पानी फिर उसने हमें दिया। उसने कहा ये पानी पी लो, नॉर्मल सादा पीने वाला पानी है, इसमें कोई ऐसा कुछ भी कोई नहीं, केमिकल वगैरह या गंदा कुछ पानी नहीं है, गंदा साफ। पानी नहीं है, ये साफ़ पानी है। हम घरों में ये पानी इस्तेमाल करते हैं, तुम लोगों ने इसी से वज़ू शज़ू करना है। और वो हमारा वो बंदा जो बाद में एक मौलवी उधर आया था, उसने हमें जुम्मा पढ़वाया था। इस लिहाज से वो बंदे अच्छे थे, नमाज भी पढ़वाते थे 5 वक्त की। जितने दिन हम तकरीबन 5 दिन हम उधर ग्वादर में उसी घर के अंदर रहे। तो 5 दिन के अंदर ना हम तकरीबन उसको हम मनाते रहे हैं, उसको हम प्रोटोकॉल देते रहे हैं। वो हमारे साथ बहुत अच्छा चला है, यानी कि वो हमसे ज़्यादा पैसे नहीं लेता था। उसको हमने बोला हमें मुर्गी ला के दो, वो हमें मुर्गी ला के देता था। जितने की आती थी वो उतने की ही देता था, हमसे ज़्यादा फालतू पैसे नहीं लेता था। हम 8 लड़के थे, थोड़े थोड़े पैसे करके मिल बांट के हम कर लेते थे। हमने मुर्गियाँ मंगवानी वहाँ पे, हमने कभी चावल मंगा लेने, चावल बना लेने, कभी मुर्गी बना के रोटी साथ बाजार से नान वो लेके आता था वहाँ। कितने दिन आप वहाँ पर रहे? 5 दिन हम ग्वादर में रहे थे। तो फिर उसके बाद तकरीबन चौथे दिन उसने ग्वादर से हमें उस घर से निकाल दिया था। शाम को एक डाला सा आया था, उस डाले में उन्होंने हमें बैठाया, वो डाला हमें ले गया। तो उस डाले में उन्होंने हमें उस डाले के अंदर लिटा दिया ना, वो जैसे ये नहीं होते विको डाले जो होते हैं, उसकी बैक साइड पता खाली होती है, उसके ऊपर उसने हमें लिटा दिया। उसके बाद वो हमें लेके गए, हमें नहीं पता चला कि वो हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। वो बॉर्डर पे लेके जा रहे थे, भगाता गया डाला, भगाता गया। उसने एक दफ़ा हमारे पीछे उनकी लग गई आर्मी वालों की एक गाड़ी लग गई। उन्हें शक हो गया था, क्योंकि जो स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा स्पीड थी। इसने भगाई, इसने वहाँ से पेट्रोल पंप से 4-5 चक्कर लगाए, फिर एक शहर में ले गया, फिर वहाँ से घुमा के फिर यानी कि सारी रात घुमाता फिराता रहा, घुमाते फिराते इसने हमें वहाँ पे उतारा एक पहाड़ी के ऊपर। कहता है इसके अंदर तुम पत्थरों के अंदर छुप जाओ, मैं तुम लोगों को रात को आकर उठाऊँगा। अभी मैं तुम लोगों को नहीं उठा सकता, क्योंकि हमारे पीछे भी आर्मी वाले हैं। अभी मैंने कहा तुम लोगों को उठाया, तुम लोग भी पकड़े जाओगे। तो फिर उसके बाद उन लोगों की आर्मी वालों के साथ भी वो काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा आर्मी वालों के आपस में भी इनके साथ जो है ना लिंक होते हैं। तो वो इनको बताते रहते हैं कि आज तुम लोग पकड़े जाओगे, आज तुम लोगों का ये होगा, आज तुम लोगों का पोस्ट गार्ड, जो पोस्ट गार्ड वाले हैं ना, वो इनका अपना डिपार्टमेंट है। ग्वादर और बलूचिस्तान में पोस्ट गार्ड, वो जिसकी मैं बात कर रहा था ना, मुझे याद नहीं आ रहा, पोस्ट गार्ड उसको कहते हैं। वो इन लोगों का सबसे गंदा डिपार्टमेंट है। उसमें सारे ये खुद ही लोग हैं। उसमें 5-5 हज़ार रुपये लेते हैं और बॉर्डर क्रॉस करवा देते हैं वो पोस्ट गार्ड वाले। ना उनको आर्मी वाले कुछ पूछते हैं, ना कोई कुछ। अब बस वो अपनी गाड़ी में बैठाते हैं। आर्मी वालों को वो कहते हैं कि ये हमारे मेहमान, हम इनको लेके जा रहे हैं।
आर्मी वाले भी अब क्या कर सकते हैं, ज़ाहिर बात उनको है। भी पता है हमारे मुल्क के जवान डंकी लगा रहे हैं, यूरोप जाना चाहते हैं। वो एक दफ़ा जब उनके पास आर्मी वाले आर्मी वालों के पास आप पकड़े जाते हैं, आर्मी वाले आपको समझाते हैं, अगर आप समझ जाएं काफ़ी ज़्यादा आपको वापस नहीं भेजते। 100% चांस होता है अगर आप पाकिस्तान के अंदर पकड़े जाते हैं आपको वापस नहीं भेजा जाता। आर्मी वाले वो आपसे पूछते हैं यार आप लोग कितना कितना पढ़े हुए हो, जो मैट्रिक पास होते हैं उनको वो लेटर बना के देते हैं, वो कहते हैं ये वैकेंसी आने वाली है, तुम आर्मी में अप्लाई करो, तुम यहाँ पे कुछ काम कर लो। जब सारे मिल के कहते हैं नहीं सर हमें जाने दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, प्लीज़ आपके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं हमें जाने दें, वो आर्मी वाले हमारी पाकिस्तानी आर्मी जिंदाबाद है, वो हमें छोड़ देते हैं। वो कहते हैं ठीक है यार जो अल्लाह पाक तुम्हें कामयाब करे। हमारे साथ खुद ऐसा हुआ था कि जो गाड़ी हमारे पीछे लगी थी, जब हम अगले दिन जा रहे थे बॉर्डर पे, जब हम वो एक बॉर्डर पे ना तार सी लगी होती है ईरान के और पाकिस्तान के दरमियान ना, एक तार सी लगी हुई है जो पॉइंट इन्होंने बनाया हुआ था, उस तार को इन्होंने ऊपर से थोड़ा सा काटा हुआ है, नीचे से उसके रेत निकाली हुई है, उसके अंदर से वो गाड़ी यकदम निकालना है, लेके गाड़ी के ऊपर उन्होंने जाना है। अगर उन्होंने पैदल लेके जाना तो वो रात को लेके जाता है। तो वो एक गाड़ी हमारे पीछे ही थी, उनको भी पता था कि इन्होंने निकलना है, आज निकले या कल निकले, वो उसी पॉइंट के ऊपर वो मौजूद थे। हमारी गाड़ी जब रेल के ऊपर चढ़ती गई है ना, जब उन्होंने देखा है वो हमारे पीछे आए हैं, उन्होंने हमें देखा है, हमारे पीछे उन्होंने लगाया, उन्होंने हवाई फायरिंग की है, 2 फायर उन्होंने हवाई किए थे। तो एजेंट जो था वो घबरा सा गया था, उसने कहा मैं पकड़ा गया तो मुझे मार पड़ेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। वो एजेंट हमारा जो था उसकी ड्राइविंग कमाल की थी, उसने पूरा फास्ट एंड फ्यूरियस था, पूरा फास्ट एंड फ्यूरियस से भी फास्ट बंदा था। उसने वहाँ से गाड़ी निकाली है, मुबीन भाई आप यकीन करें कि गाड़ी हमारी यूँ रेत के अंदर गई है और यूँ ही बाहर निकलेगी, हमें समझ में है। हालांकि गाड़ी के अंदर रेत के अंदर ऐसे गाड़ी जाए तो गाड़ी अंदर फंस जाती है, उसको इतना एक्सपीरियंस था, वहीं से गाड़ी उसने बाहर निकाल। अब ज़ाहिर बात है हम तारों के उस पार चले गए हैं, हम पाकिस्तानी आर्मी वाले कुछ भी नहीं हमारा कर सकते, ना हमें पकड़ सकते थे, ना वो उस तरफ आ सकते, क्योंकि आर्मी वाले जो हैं वो अपने कानून के अलावा नहीं आगे नहीं जा सकते हैं। सारे बॉर्डर का ऐसे ही होता है कि कोई भी आगे नहीं जा सकता। तो फिर उसके बाद जब हम वहाँ पर निकलते गए हैं ना, तो उसने गाड़ी खड़ी कर दी थी जान के इन लोगों से बातचीत करने। फिर हमारी जो उस हम ईरान में खड़े हुए थे और वो लोग पाकिस्तान में खड़े हुए थे, तब हमारी उनके साथ आर्मी वालों के साथ बात हुई थी। आर्मी वाले तब हमें ये कह रहे थे कि तुम लोग वापस आ जाओ, तुम लोग ये कर लो वो कर लो, अब चले तो तुम गए हो, हम लोग अगर पकड़ना चाहें तो मैं यहाँ से पकड़ सकते हैं। हम लोग आर्मी ईरान के आर्मी को भी बता सकते हैं कि आपके मुल्क में हमारे पाकिस्तानी इतने इंटर हो, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। तुम लोग हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर हो, अच्छे बच्चे हो, अच्छे ख़ानदानों से हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों जा रहे हो? तुम लोगों को पता है कि ये ज़िंदगी और मौत की खेल है, कुछ भी हो सकता है, मारे भी जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मेरे शहर का एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, उनकी गारमेंट्स की शॉप थी, उसने मेरे से कुछ अर्सा बाद टंकी लगाई थी और वो समुंदर में डूब गया था। हाँ डूब गया था, उनका शिप डूब गया था, उसकी डेथ हो गई थी। तो यानी कि ऐसा होता है यार, बहुत सारी ट्रेजेडी हो जाती है बंदे के साथ, एक जान की बाजी लगानी होती है, यानी कि आप हाथ में जान रख के लेके अपनी जान पे, कभी भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जब तक आप पाकिस्तान में अपने मुल्क में आप शेर हैं, लेकिन जब आप ईरान में आ जाते हैं वहाँ पे आपकी कुछ नहीं चलती है। ईरान वाले अंधाधुंध फायरिंग भी कर देते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, अंधाधुंध फायरिंग उन पे की गई है, बहुत सारे लोग पकड़े भी जाते हैं, उन लोगों को वो मारते हैं, बड़ा बुरा हाल ईरान वाले कर देते हैं, काफ़ी होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे साथ जब लास्ट टाइम था ना, मेरा लास्ट टाइम था, उस वक्त मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ इससे पहले मैंने एक और डंकी लगाई थी, उसमें मेरे साथ हुआ था कि उन्होंने हमारी गाड़ी को फायरिंग की थी, तो हमारी गाड़ी के टायर फट गए थे, हमारी गाड़ी उल्टी हो गई थी, वो पहाड़ी से नीचे गिरी थी, लेकिन उसमें भी हम बच गए थे, हमें कुछ हुआ नहीं था। हम में से सिर्फ एक बंदे का सर फटा था, किसी को गोली वगैरह भी नहीं लगी थी, वो हमें उन्होंने पकड़ लिया, हमें उन्होंने वापस भेजा। उसके बाद ये मेरी सेकंड ट्राई थी जिसमें मैं आया हूँ, फर्स्ट ट्राई नहीं थी मेरी। मैंने बहुत एक दफ़ा तो मैं काफ़ी ज़्यादा स्केर्ड हो गया था यार, ये इस तरह होगा, इस तरह होगा। ज़ाहिर बात है एक बंदा जब लगानी चाहिए, मौत इस तरह के सवाल आते थे ज़हन में, ज़ाहिर बात है सवाल आते हैं जब एक बंदा मौत को अपनी आंखों से देख के आ रहा है। उन लोगों ने नहीं देखा कि अंदर बंदे बैठे हुए हैं या क्या। उस गाड़ी में हम 12 लोग थे, छोटी सी कार थी, जैसे आप समझ लें कि जैसे टोयोटा करोला पाकिस्तान में होती है, 12 बंदे उसमें बिठाना कितना बड़ा रिस्क होता है। डिक्की के अंदर बंदे, पीछे बंदे, आगे बंदे, जो ड्राइवर, जहाँ ड्राइवर बैठा होता है ना, ड्राइवर अपने नीचे भी एक बंदा लेटा लेता है, वो कहता है यहाँ पे लेट जाओ। अच्छा ईरान की बात फिर आपको गया
پھر ایران میں جب ہم انٹر ہوئے اس کے بعد اس نے ہمیں وہاں سے کسی اور ایک اور بندے کے آگے ہمیں لے لیے. اس بندے نے ہمیں اٹھایا, اس بندے نے ان کا سب کے ساتھ لنک ہوتا ہے, ہم یہاں پر پہنچے یہ ان کا سب کے ساتھ لنک ہوتا ہے. اور جب ایران میں یہ انٹر ہوتے ہیں نا, ایران میں یہ علاقہ غیر سے آپ کو گزار کے لے کے جاتے ہیں, علاقہ غیر سے زیادہ تر آپ کو سفر کرواتے ہیں, جو کہ نہ پاکستان کا حصہ نہ ایران کا حصہ ہے. وہاں پہ آپ کو سارے جو دہشت گرد وغیرہ ہوتے ہیں, ٹیررسٹ, اس طرح کے لوگ کافی مل سکتے ہیں. یعنی کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کیا جائے, وہ لوگ ان جگہوں پر ملتے ہیں. ہمیں بہت زیادہ ملتے تھے. اسمگلرز ہوتے ہیں وہاں پہ, جو یہ وائٹ پاؤڈر وغیرہ کچھ اس طرح کا, چرس وغیرہ ہوگی, یہ چیزیں آگے اسمگل کرنے جاتے ہیں. ان کے ساتھ پھر ہم آگے آئے تھے. ان کے ساتھ ملنے کے بعد وہاں پہ ہم گئے تھے. ان لوگوں نے بڑا اپنا پہاڑوں کے اندر سسٹم بنایا ہوا, پہاڑوں کے اندر انہوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے. بے شک وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں, لیکن ہم لوگوں کو انہوں نے ایسے رکھا تھا جیسے ہم ان کے مہمان تھے. ان لوگوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں کہا, نہ ہم سے کچھ پیسے لیے نہ کچھ. تو اس کی ایک وہاں پہ ان کی جو سب سے بڑی ایک نا اماں تھی, ان کو وہ اماں کہتے تھے, سارے اماں کہتے تھے. جب ہم وہاں سے وہ ہمیں لے کے جا رہے تھے نا, اس نے بولا کہ ان کو اچار دو, جو پاکستان میں نیسلے کے پیکٹس نہیں ملتے اچار کے, وہ اس نے ہر بندے کو 4 پیکٹ اس نے وہ دیے تھے. اس نے بولا تھا یہ تم لوگوں کے بہت کام آئیں گے, اور واقعی میں وہ ہمارے بہت زیادہ کام آئے تھے, کیونکہ ان کا تو روز کا بزنس تھا, ان کا ایکسپیرینس تھا. شاید وہ ویسے ہی کچھ ثواب کمانے کے لیے دے رہے تھے, جیسا بھی تھا. انہوں نے ہم سے اس چیز کے کوئی چارجز نہیں دیے. اس کے بعد ہم آگے چلے گئے. آگے جانے کے بعد ہمیں اسکوٹروں والے ملے, کوئی پیدل ملے. وہاں سے پھر ہم لوٹنا شروع ہوئے, سارے ہم لوٹتے گئے. جس نے اسکوٹر پہ جانا ہے وہ 10,000 لیرے دے گا, 50,000 لیرے دے گا, 100,000, 1,00,000 لیرے دے گا, 2,00,000 لیرے دے گا. وہ جو ان کے بک رہے تھے اس ٹائم. ہاں, جو تمن سوری, اس کو تمن کہتے ہیں. لیرے تو ترکی کی کرنسی ہے نا, تمن اس کو کہتے ہیں. 20,000 تمن, 50,000 تمن, 1,00,000 تمن, 3,00,000 تمن. وہاں پہ ایک مزے کی بات ہے, ایک جو بسکٹ ہوتا ہے نا نارمل, وہ 10,000 تمن کا آتا ہے. جب بنا جاتا ہے بندہ سکتا ہے. وہاں پہ آپ اپنے جب جا کے آپ اپنی کرنسی چینج کرواتے ہیں نا, آپ اس کو مثلا 100 روپیہ دیتے ہیں, وہ آپ کو 3,00,000 روپیہ دیتا ہے. وہ کہتا ہے یہ لو 3,00,000 تمن لے لو. بندہ کچھ ہو جاتا ہے, یار 3,00,000 روپئے لینا کم سے کم. تو وہ پھر جب پتہ تب چلتا ہے جب وہ 3,00,000 جو ہے نا کوڑیوں کے بھاؤ دے 2 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے. 2 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے. 50,000 تمن کی وہاں پہ وہ کولڈ ڈرنک ملتی ہے, 10,000 تمن کا, 5,000 تمن کا ایک بسکٹ ملتا ہے. پھر اس کے بعد جی انہوں نے ہمیں آگے سفر شروع کروا دیا. کوئی گھوڑے لے کے آ رہا ہے, کوئی کچھ لے کے آ رہا ہے, کوئی کچھ لے کے آ رہا ہے. ویسے بٹھاتے گئے ہمیں, آگے لے کے جاتے گئے. زیادہ انہوں نے پیدل چلوایا. وہ کہتے تھے جو پیسے دیں گے ان کو جو ہے نا موٹر سائیکل یا گھوڑے ہی موٹر سائیکل میں لے گئے. میں نے تو ایک دفعہ پہلے ڈنکی لگائی تھی, مجھے ان لوگوں کی کمزوری پتہ چل گئی تھی. یہ لوگ موبائلوں پہ بہت زیادہ مرتے ہیں. تو میری بیسیکلی وہاں پاکستان میں دکان تھی موبائلوں کی, تو میرے پاس جو خراب موبائل تھے نا, میں تقریباً 30 سے 40 موبائل میں نے بیگ کے اندر ڈالے ہوئے تھے, وہ سارے میں لے کے آیا. میں اسے ایک موبائل لیتا تھا, اب ظاہری بات ہے وہ موبائل خراب ہے. میں کہتا تھا اس کے اندر بیٹری نہیں ہے, صرف بیٹری ڈلوا لینا, موبائل بہت فٹ ہے. اس طرح کر کے کافی سفر میں نے, اور میرا دوست عاطف جو میرے ساتھ آیا تھا پاکستان سے, میرے شہر سے, وہ ایجنٹ کا چھوٹا بھائی تھا, سگا چھوٹا بھائی تھا. مجھے اس لیے بھی تھوڑا زیادہ بینیفٹ ملا کہ میں ذرا جلدی پہنچ گئی. تو وہ مجھے لے کے آیا اپنے ساتھ, وہ بھی لے کے آیا. تو وہاں پہ ہم موبائل دیتے رہے, ہم اسکوٹروں کے اوپر بیٹھتے رہے, کبھی گھوڑوں کے اوپر ہم نے سفر کیا. پھر وہ ہمیں اس نے جب ایران کا جو مین شہر ہے نا, وہاں پہ جب انٹر ہوتے ہیں نا, تہران جس کو بولتے ہیں, وہاں پہ جب انہوں نے ہمیں انٹر کرنا تھا, وہاں سے انہوں نے بولا تھا آپ نے ٹوٹلی پیدل جانا ہے. یہاں پہ ہم آگے آپ کچھ بھی نہیں ملے گا, نہ کچھ ہوگا. وہاں پہ جب ہم تہران پہنچے, تہران میں ان لوگوں نے ہمیں وہاں پہ تقریباً 2 دن چلایا. پیدل چلتے گئے. اوپر سے ایران میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے, وہ دھوپ, بہت سخت دھوپ تھی. ہم لوگوں کو پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا تھا, ہمارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا. پھر ایک چشمے کے پاس وہ ہمیں لے کے گیا تھا, اس چشمے سے ہم نے پانی پیا. اس چشمے کے اندر جانور بھی پی رہے تھے, ہم بھی وہی پانی پی رہے تھے. لیکن اس وقت بندے کی عادت جانوروں سے بھی آگے ہوتی ہے. ایک جیسے بندے کو ریگستان میں ایک پانی کا ٹھیلا سا نظر آ جاتا ہے نا, ایک پانی کا کنواں نظر آ جاتا ہے, وہ اس میں بہت خوش ہو جاتا ہے. ویسے ہمیں فیلنگ آئی, یار ہمیں پانی نظر آیا. اور
यकीन जाने वो इतना ठंडा पानी था, उसके अंदर हाथ लगाते थे वो ठंडी फील होती थी, बहुत मज़ा आता। सारे टोटली जितने भी बंदे थे सब वहाँ पे नहाए थे। उन्होंने बोला यार पहले नहा तो लेना, पानी शानी पीने के बाद आगे पता नहीं मिलना है या मिलना है क्या या नहीं मिलना मिलना। फ्रेश पानी आ रहा था, पत्थरों से पानी निकल रहा था, सामने हमारे ऊपर से झरने से पानी आ रहा था, हम देख रहे थे। एक बहुत ही प्यारा सीन था। अगर वहाँ पे वो वीडियो वगैरह बनाने थे तो वो हमें वहाँ पे मोबाइल नहीं ऑन करने देते, वो कहते थे यार ट्रेस हो सकते हैं, सारे पकड़े जाएंगे। वहाँ पे फिर आगे हम तेहरान पहुँचे। 2 दिनों के बाद सफ़र करने के बाद पहाड़ों के ऊपर चढ़, पहाड़ों के नीचे उतर, हमें बस वो यही कहता था ये बस थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा आगे। बंदे को हौसला देते हैं। उसको कहते थे भाई भूख लगी हुई है अब नहीं चला जा रहा। वो कहता था ठीक है इधर बैठ जाओ, अल्लाह मालिक तुम ना तुम्हारा फिर अल्लाह मालिक, तुम्हें कोई भी उठा के ले जाएगा, तुम्हारे घर वालों को फ़ोन करेगा, पैसा दो फिर पाकिस्तान चले जाओ। बंदा वैसे ही डर जाता है यार अब क्या करें यहाँ पे। अब बंदा ये यानी कि वो आपको फंसा लेते हैं और वो आपको चला चला के हमारे आपके पास कोई और रास्ता नहीं होता ना। बिल्कुल हमारे पास कोई और जा सकते। रास्ता नहीं होता, वो बस जाने ही जाना होता है उनके साथ। अगर आप पीछे रह जाते, काफ़ी लड़के होते हैं जो पीछे रह जाते हैं, वो फिर पुलिस को कॉल करते हैं, तो अपना मोबाइल ऑन करके पुलिस वालों को बुलाते हैं, पुलिस वाले फिर वो पकड़ लेते हैं, फिर वो रिपोर्ट करते हैं। वो तकरीबन 15-20 दिन के अंदर पूरा प्रोसीजर चलता है रिपोर्टिंग का, तो वो आपको पाकिस्तान भेज देते हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद हम तेहरान पहुँचे। जब हम तेहरान पहुँचे हमें यही था कि हम यार 8 लोग टंकी लगाएंगे, हमें ज़्यादा बंदे नहीं होंगे और दिन होंगे। जब जब हम तेहरान पहुँचे वहाँ पे आगे हमारा 46 बंदे वेट कर रहे थे कि इन लोगों ने 46 बंदे वेट कर रहे थे। 46 बंदे हमारा वेट कर रहे थे। वो लोग हमारा वेट कर रहे थे कि इन लोगों ने आना और हमने मिल के टंकी लगा आगे जाना है। आगे जाना है इस्तांबुल के लिए निकलना। जब हम वहाँ पे गए उन्होंने एक तहखाना, एक घर के अंदर एक बड़ा खूबसूरत सा ऊपर घर बना हुआ, नीचे उसके तहखाने के अंदर वहाँ हमें तो ये लगा कि हमें यार इस घर के अंदर रखे हुए VIP घर मिल गया है। बड़ा सिस्टम होगा, चलो कुछ दिन सुकून के गुजर जाएंगे। लेकिन वो जब उसने नीचे भेजा ना खाने में ले आएंगे। वो आगे देखा तो भाई जी लेटने की ना जगह ना बैठने की जगह। जो पहले थे वो भी बेचारे कुछ पाकिस्तानी थे कुछ अफगानी थे, सब अफगानी और पाकिस्तानियों की आपस में तकरीबन लड़ाई होती रहती है डंकी के दौरान। तो लेकिन जो पाकिस्तानी होते हैं ना, और कहीं मिले ना मिले ना, डंकी के अंदर पाकिस्तानी कहते हैं भाई तू मेरा भाई है, तू मेरा भरा है, तैन नहीं मैं चढ़ना, तू जिन भी है ना तुम्हें ना दे लेना। यानी कि वो आप लोगों का साथ रह के इतना तल्लक बन जाता है कि अगर एक पाकिस्तानी के साथ एक अफगानी बदतमीजी करता है तो उसको मारा जाता है, उस अफगानी को मारा जाता है। वो अफगानी और पाकिस्तानियों की अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अफगानी जो होते हैं ज़्यादातर वो ऐसे ही पंगे शंगे लेते रहते हैं। जब लड़ाई वगैरह वो करते गाड़ियाँ रहते हैं। आती हैं, गाड़ियों के अंदर वो पहले चले जाते हैं, फिर पाकिस्तानियों को नीचे दबा के रखते हैं, ऊपर वो बैठते हैं। इस तरह करके ना जो डंकी में आपको पाकिस्तानी सही पहलवान भाई मिलते हैं ना, वो तो हमारे साथ एक लड़का जब हम आगे जाए निकलने लगे थे ना इस्तांबुल के लिए, हमारे साथ एक लड़का था, उसकी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा सेहत थी, काफ़ी ज़्यादा बॉडी शाडी थी उसकी। तो वो भी हमारे मंडी पाबंदीन का था, सुहावे का था। वो उसको जब बताया कि हम भी मंडी पाबंदीन के हैं, तो मंडी वालों का एक अलग ग्रुप बना हुआ था, वहाँ पे काफ़ी लड़के थे, 12 लड़के थे, वो भी मंडी के 2, हम भी उनके साथ मिल गए। तो उनके साथ फिर नया एक ग्रुप बना, जो पीछे आए थे उनको भी हमने अपने साथ रखा। उनके साथ काफ़ी अच्छी गपशप होती रही। तो वो जो एजेंट था ना, जब आगे जाने लगे ना, तो इन जब डंकी लगा रहे थे ना, तो सबसे कमज़ोर हमारे जो ग्रुप, उन्होंने हमें एक ग्रुप बनाया था, वहाँ पे वो ग्रुप बना देते हैं 12-14 बंदों। सबसे कमज़ोर बंदा मैं था अपने ग्रुप के अंदर ना। वो सारे मुझे देख के कहते थे यार भाई तो डंकी ला ऐसे मैंने ये देता था नहीं ये जो पेंटोर तेरा देखी रहेगा। सारी बात है, वो शुरू से ही मेरी कुछ कंडीशन है, मेरी सेहत ही ऐसी है नॉर्मल, मैं ऐसी रहा हूँ ना, मैं कभी ज़्यादा मोटा हूँ ना मैं कभी ज़्यादा इससे पतला हूँ। इससे और पतला सारी बात है वो डंकी में हो जाता है। जब मैं इस्तांबुल में इंटर हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गया था, बहुत ज़्यादा मेरी सेहत डाउन हो गई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खाना शाना नहीं मिलता था वहाँ पे। वो उसने हमें जब खाना दिया ना, उसने रोटियाँ दी, साथ में उसने दही दी, वो पनीर थी, दही भी नहीं थी, पनीर थी। वो कहते हैं इसके साथ रोटी खाओ। तो हमें फिर वो माई बहुत याद आई, हमने बहुत दुआएं दी उस माई को, जो माँ जी हमें मिले थे पाकिस्तान से। जब ईरान हम इंटर हुए, ईरान के बाद जब हम गए थे ना वो इलाका गैर में, तो वो उसने हमें जो अचार दिया था ना, वो अचार हमारा वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आया। वहाँ पे उसने हमें रोटियाँ दी, तो हमने कुछ रोटियाँ जो है ना शॉपरों के अंदर लपेट के, बैग के अंदर लपेट के, ताकि यार रास्ते में खाए। आगे काम उसके अंदर अचार लगा के ना, उसको बड़ा ऐसे जैसे रोल बनाते हैं, जैसे शवारमा पाकिस्तान में, वैसे उसके अंदर ये अचार शवारमा था, अचार शवारमा था, वैसे हमने लपेट ली।
कुछ जो पनीर उसने दी थी वो पनीरें वगैरह उठा के रख ली। तो जब वो आया उसने देखा, उसने कहा तुम लोगों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, सारा खा गए, हम बैगों में डाला। हमने बोला नहीं साहब खा दी। बैगों का पता है तो वो निकाल लेते हैं, बहुत कमीने होते हैं। फिर आगे से उन्होंने हमें डालों में डाला, काफ़ी ज़्यादा सफ़र करवाते रहे। फिर आगे हमें बसों के अंदर उन्होंने डाला, जब बॉर्डर पे हमें लेके जाना था। बस के अंदर सीट पे नहीं बिठाते वो बस के अंदर जहाँ पे सामान वगैरह रखते हैं, डीजल नहीं होता डीजल, अच्छा। और जहाँ पे सामान रखते हैं, जो डीजल का कैन होता है वो हाफ कार्टेड होता है, ऊपर से एक सीट उठाते हैं, उस सीट के अंदर एक छोटा सा हॉल होता है, डिब्बा बना हुआ है। वो ज़ाहिर बात था, मैं उसमें हिसाब से पतला था, मैंने पहले हमें सबको खड़ा किया, लाइन में खड़ा किया, उसने मुझे देखा, उसने बोला तुम इधर आ जाओ, उसने मुझे उसी सुराख के अंदर घसीट कहता तुम इधर जाओ, तुम्हारे लिए ये सेफ जगह है। हमारे लिए सबसे सेफ जगह, तुम उसके अंदर चले जाओगे। बाकी जो मेरा ग्रुप था ना वो 12-14 बंदों का ग्रुप करके ना इस तरह निकालते हैं, एक गाड़ी के अंदर 12 बंदे 14 बंदे। तो बाकी जो मेरे बंदे थे ना वो जानने वाले, वो मोटे थे, उनसे उसके अंदर इंटर इतना सा यार वो सुराख था, इतना सा सुराख था, मैं उसके अंदर से इंटर हो गया था अंदर। लेकिन ये है कि मैं बड़ा सुकून में ऐसे अंदर उसके लेटा रहा, बस हवा उसके अंदर उन्होंने सुराख किए हुए थे नीचे से, जैसे जैसे वो गाड़ी चलती थी हवा आती थी बहुत प्यारी, मैं सुकून से उसके अंदर सोया रहा, मेरा बैग भी उसके अंदर मेरे पास था, मैं खाता भी रहा। लेकिन जो मेरे साथ के बाकी साथी थे, कुछ लोगों को उन्होंने सीटों के नीचे रोल करके उसके आगे उन्होंने सामान जोड़ दिया, कुछ लोगों को जहाँ सामान रखा जाता है जानवरों वाला वहाँ पे उन्होंने भेजा, वहाँ पे उन्होंने बिठा दिया। 2 बसों के अंदर हमें ऐड किया था उन्होंने। तो जो हमारी पीछे वाली बस थी ना वो हमारी बस पकड़ी गई थी, पहली बस हमारी निकली थी, हम बच गए थे, हम लोग नहीं पकड़े गए थे। हम लोगों को मेन वो बस इस्तांबुल जानी थी? नहीं, इस्तांबुल नहीं जाती है वो बस, जो है ना मेन बॉर्डर पे जाती है इस्तांबुल से। वहाँ अपने पहाड़ियाँ 2 क्रॉस करनी होती हैं, माको पहाड़ी, आपने नाम सुना होगा, चाँद तारा पहाड़ी और माको पहाड़ी, बहुत मशहूर पहाड़ियाँ हैं। तो वो जिस पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आई थिंक कि वो है शिप पड़ी हुई है जिस पहाड़ी के ऊपर, वो वाली वो शिप देखी है? वो शिप वो थोड़ी सी ऊपर वाली साइड पे है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्मी वगैरह वाले होते हैं, वहाँ पे नहीं वो आपको जाने देते हैं। वो थोड़ी सी उससे ऊपर होती है, थोड़ी सी साइड पे करके है। वो इस्तांबुल में ना एक बीमारी है, इस्तांबुल में जो भी बंदा आता है उसको खारिश पड़ जाती है, इस्तांबुल वाले इन सब को खुद भी खारिश पड़ी होती है। तो ये सारे लोग वहाँ पे जाते हैं, आते नहीं नहाते तो है, मुसलमान है, लेकिन इन लोगों को किसी ने बददुआ दी थी, सुनने में जो आया था। हम वहाँ पर हैं, बेसिकली हमें मेन पता तो नहीं है ना कि क्या ये बात क्या इशू है। तो सबको वहाँ पे खारिज पड़ जाते हैं, पाकिस्तानी भी रहते हैं उनको खारिज पड़ जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि पाकिस्तानी को वहाँ पे नहाना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तानी ना नहाए, पाकिस्तान को 3 दिन के अंदर खारिज पड़ जाती है लाजमन। तो उन लोगों को खारिज पड़ी होती है, वो लोग वहाँ पे उस कश्ती के अंदर जाते हैं। वो कश्ती ना एक उन्होंने अंदर से ना गहरा सा खोदा हुआ, उसकी मिट्टी को अपने जिस्म के साथ लगाते हैं तो उनकी खारिज ठीक हो जाती है। ये उस कश्ती में आज भी शिफा है, ये बड़ा फेमस है। वो अभी भी वहाँ पे बहुत दूर से लोग उस कश्ती को देखने के लिए जाते हैं। तो फिर बस में बैठे, फिर क्या हुआ? बस में बैठे हम लोग तो पहुंच गए थे, हमारे पीछे वाले पकड़े गए। जब हम वहाँ पे गए, हमने एजेंट से पूछा हमारे पीछे वाले बंदे किधर गए हैं। 6 लोग हम पहुँचे थे, 14 लोग थे हम टोटल, 6 लोग पहुँचे थे जो मेरी वाली बस में थे। तो उसने कहा वो तो बस उनकी पकड़ेगी, वो तो पकड़ेगी, वो अब नहीं आएंगे। वहाँ पे हम गए, हम 6 लोग रह गए थे। हमने देखा कि जी, हमने कहा चलो हम 6 लोग अब इस्तांबुल पहुँचेंगे। जब हमें वो रात को एक पहाड़ी के ऊपर लेके गए ना, गाड़ी के अंदर बिठा के, उस बस के अंदर से हम निकले हैं, वो एक वीरान सी रोड थी, वहाँ पर उन्होंने हमें निकाला है। फिर उन्होंने आगे एक गाड़ी में बिठाया है, तो गाड़ी में बिठाने के बाद वो हमको एक पहाड़ी पे ले गया। हमने कहा 6 लोग ही हैं, खैर सुकून से सफ़र गुजर जाएगा, आपस में ही है। लेकिन जब हम पहाड़ी पे गए ना, वहाँ पे कम से कम 300 बंदा ऑलरेडी हमारा वेट कर रहा था। फिर हर जगह इनका वेट हो रहा था, हर जगह हमारा, क्योंकि हम सबसे लेट पहुंच रहे थे, हर जगह हम सबसे, हमारे साथ ट्रेजेडी हो रही थी, हमारे बंदे पकड़े जा रहे थे। फिर वहाँ पे उन्होंने हमारा ग्रुप बनाना शुरू कर दिए। 2 लड़के थे और 2 लड़कियाँ थी जो हमारी एजेंट थी, जिन्होंने हमें बॉर्डर क्रॉस करवाना था, वो भी ईरान के थे। तो लड़के थे, जवान लड़के थे। तो उन्होंने हमें ग्रुपों में तकसीम किया। एक मसलन आपके जो एजेंट का नाम होता है ना, जो आपको मुख्तलिफ एजेंटों के नाम आगे मिलते रहते हैं, आप जाते जाते हैं आपको मुख्तलिफ एजेंटों के नाम मिलते रहते हैं, आपकी पहचान एजेंटों के नाम से होती है। वैसे उनके लिंक होते हैं, किसी को भी नहीं पता होता आप बंदे किसके हो।
जो मेन आपका एजेंट होता है ना पाकिस्तान से, वो ख़त्म हो जाता है जब आप ईरान में इंटर होते हैं। फिर ईरान के एजेंटों का नाम शुरू होता है। सबसे फेमस नाम हाजी, उस्मान, अली, ये इस तरह के नाम जो है ना चलते रहते हैं। हम हाजी के बंदे थे, तो हमने कहा चलो जी हम हाजी के बंदे हैं। हम में से जो 6 लोग हम आए थे, जो हमारे साथ पीछे से आए थे, वो 4 लोग अलहदा हो गए। हम 2 बंदे हाजी के बंदे थे, उन्होंने हमें अलहदा कर दिया। हाँ। जिसके बंदे होते हैं उसके अलग ग्रुप बनाए जाते हैं। उनके पास एक लिस्ट होती है, बकायदा लिस्ट बनाई हुई होती है। वो उस लिस्ट के हिसाब से एजेंटों से पैसे मांगते हैं। वो बंदों का बताते हैं कि भाई जी कितने तुम्हारे बंदे हैं, ये नाम है, पाकिस्तान के लिए ये एजेंट है, फलां एजेंट से ये हैं, अभी ये पहुँचे। यानी कि वो सारी उनको इन्फॉर्मेशन देती है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होती है। उन्होंने भी आगे पैसे लेने होते हैं, ज़ाहिर बात है। तो उस तरह मुख्तलिफ किस्म के वो ग्रुप आपके बन जाते हैं। तो जिस ग्रुप में हम गए थे, वो जो हाजी का ग्रुप था, उसमें हमारे 64 बंदे हमें मिले थे। तो उनसे भी काफ़ी ज़्यादा सलाम दुआ आई हमें पहाड़ी पे बैठे बैठे। फिर आगे हम पहाड़ी चढ़ना शुरू हो गए, उसने हमें पहाड़ी चढ़ाना शुरू किया। तो सबसे पीछे मैं था, सबसे पीछे, और मेरा दोस्त आतफ मेरे साथ। हम चिल मोड में चल रहे थे। हमने कहा अब यहाँ पे ख़तरा नहीं है, तो बड़े सुकून मोड से हम चल रहे थे। चल ही नहीं जा रहा था, बड़ी हालत थक गए थे यार, सारी रात सफ़र करके। फिर आगे दिन भी स्टार्ट होने वाला था। उसने पहाड़ी चढ़ाना शुरू की, चलते चलते चलते, काले पत्थरों की वो पहाड़ी थी, पत्थरों के ऊपर चलते चलते मेरे तो बूट भी टूट गए थे, बूट भी टूट गए। फिर मैं नंगे पाँव चल के आया हूँ इस्तांबुल। तो फिर चलते गए, मेरे पाँव के अंदर काफ़ी ज़्यादा कट लग के बनाना शुरू हो गया। यानी कि मेरे पाँव यूँ समझ लें कि ढीठ हो गए थे बिल्कुल ना, इन्हें महसूस ही नहीं हो रहा था कुछ भी, पत्थरों की तपश वगैरह एकदम महसूस नहीं हो रहा। फिर जाके हम जी सुबह तकरीबन हमने रात को 3 बजे हम पहाड़ी से शुरू किया था चलना हमने, और सुबह जाके तकरीबन 7 बजे हम पहाड़ी के ऊपर पहुंचे थे। अभी हमने एजेंट से पूछा कि भैया अब हम कहाँ पहुँच गए। उसने बोला अभी तो तुम लोग पहाड़ी के ऊपर पहुँचे, अभी तो सफ़र आगे ही शुरू होगा। वहाँ पर उसने अपनी दुकानें खोल दी, चारों ने अपनी दुकानें खोल दी। उनके पास बड़े बड़े बैग थे, उसमें आपको मॉन्स्टर देते हैं, रेड बुल देते हैं, जो वो एनर्जी ड्रिंक वगैरह जो है वो आपसे जितने भी आपके पास पैसे होते हैं सारे वहाँ से आपसे खींच लिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है अभी इनको लूटना है जितना लूटना है। तो भाई ये मौका है हमारे पास। हर बंदा जो है वो भूखा होता है। वहाँ पे वो आपको इस तुर्की की सिमें देते हैं, कहते हैं जी ये लो जी सिम ले लो, सिम ले लो, सिम ले लो, इतने की सिम में चलेगी, वहाँ पे जाते जाओगे ऑन हो जाएगी। सब लोग कहते हैं चल यार घर वालों से रब्ता तो करना है, सिम ले लेते हैं। तो वो चलती नहीं है, लेकिन वो चलती नहीं है, वो आगे जाके चलती नहीं है। ईरान की सिम होती है, ईरान की बंद सिम होती है, वही हमें वो दे देते हैं। और फिर जब हम आगे जाते हैं, वो जो इस्तांबुल में हमें रिसीव करते हैं, वो उस पॉइंट वाले सिम वो हमसे सिमें ले लेते हैं, वो हमको नई सिमें दे देते हैं। वो सिमें फिर वो पहले वाले एजेंट के पास वापस आ जाती हैं। यानी कि इन लोगों ने आपस में मिली भगत करके अपना बिजनेस बनाया हुआ है ऑलरेडी पहले। तो वहाँ से फिर हमने 10 बजे सफ़र शुरू किया था। 10 बजे हम चलना शुरू हुए। शाम के तकरीबन 6 बजे हमने उससे पूछा भैया हम काम पहुँचे। उसने बोला वो सामने वाली पहाड़ी माको पहाड़ी है। 6 बजे हमने माको पहाड़ी पे चढ़ना शुरू किया था। माको पहाड़ी हाफ जो है ना वो इस्तांबुल की है और हाफ जो है वो ईरान की है। चलते 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 तकरीबन जी रात के कोई 2:30-3 हो गए थे। तो वहाँ पे आगे तारें लगी हुई थी, अंधेरा था, हमें नज़र नहीं आ रहा था। मैं तो उन तारों के अंदर फंस गया था। मेरे यहाँ पे भी काफ़ी कट लगे हैं, इधर इतनी सख्त वो तार होती है बॉर्डर की, बहुत ज़्यादा, उसके साथ सुइयाँ वगैरह लगी होती है। मेरा घुटना जो है ना बिल्कुल फट गया था उस तार की वजह से, मेरे घुटने के अंदर वो तार चली गई थी। लेकिन जो मेरा दोस्त था ना आतिफ, उसने मेरा बहुत साथ दिया था, उसने मुझे वहाँ से निकाला। ऊपर से हमें आर्मी भी वहाँ पे पड़ी थी, उन्होंने फायरिंग अंधाधुंध शुरू कर दी, हवाई फायरिंग शुरू कर दी। तो सारे भाग गए, मैं पत्थरों पे बैठा हुआ, मेरा घुटने से खून आ रहा। आर्मी वाली गाड़ी ने, मैंने देखा वो सामने आर्मी वाली गाड़ी आ गई, मैंने कहा ये मुझे मारेंगे, मुझे पकड़ लेंगे। तो सारे ऊपर भाग रहे थे, हर किसी को भाई अपनी जान की परवाह आती है। मेरा दोस्त जो आतिफ था ना, उसको मैंने कहा यार तू भी चला जा, मेरे से मज़ीद चला नहीं जाएगा। मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसम के हर हिस्से पे चोट लगी हुई थी, पसीना आ रहा था, बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी, खून भी बहुत ज़्यादा निकल रहा था। तो वो कुछ अल्लाह पाक की और मेरे माँ बाप की दुआएं थी, कुछ अल्लाह पाक ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। वो जो गाड़ी मेरे नज़दीक आई ना, तो उन्होंने देखा कि सारे ऊपर चले गए, ये एक छोटा सा बच्चा पीछे रह गया। मुझे वो कहता ठीक है जाओ जाओ चले जाओ। मुझे कुछ
تو اس نے مجھے ایسے کہا نا، میں آرام سے چلتا گیا، میں دیکھتا گیا ہوں اب آخری بندہ کدھر ہے، بس یہ میں نے ذہن میں رکھا کہ آخری بندہ کدھر ہے، اسی پوائنٹ پہ چلتا گیا. پھر اگلے دن صبح 6 بجے جا کے میں اپنے دوست سے ملا ہوں، یعنی کہ میں سب سے اینڈ پہ رہ گیا تھا، کافی زیادہ ان کا اور میرا فاصلہ ہو گیا تھا، وہ آپ اوپر بھاگ رہے تھے. پھر وہاں سے ہم پہنچے جی استنبول میں، وہ ایجنٹ ہم کو کہتے کہ اب تم لوگ استنبول میں پہنچ چکے ہو. وہاں پہ اس پہاڑی کے اوپر ہم نے کھڑے ہو کے ریسٹ کیا، کافی زیادہ سکون لیا. میرے پاس شرٹیں وغیرہ تھی، کپڑے تھے، وہ میں نے سارے پھاڑ کے اپنی پٹیاں وغیرہ کی، وہیں پہ بیٹھ کے کھانا شانا، وہاں پہ ہمیں صحیح اچھا کھانا ملا تھا. انہوں نے استنبول سے فریش سومیاں آئی تھی، وہ سومیاں انہوں نے دی ساتھ، جو بریڈ ہوتے ہیں انہوں سومیاں بولتی ہیں انڈے، استنبول والے. ہاں انڈے دیے ہمیں ساتھ میں، اور یعنی کہ کھانے کے صحیح سامان تھے. استنبول والوں نے جو بھیجا تھا نا وہ سامان ٹھیک تھا، لیکن دیا انہوں نے پیسوں سے تھا، فری کا نہیں دیا تھا. جو بھی یعنی کہ ہمارے پاس جتنا چونا لاکھ سکتا لگایا تمن جو ہمارے پاس بچے تھے وہ سارے انہوں نے ہم سے لے لیے تھے. اب ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں تھے، کوئی کچھ بھی نہیں تھا. بس اب ہمیں آگے جو مل رہے تھے وہ کہہ رہے تھے جی اب تم لوگوں نے لیڈے لینا ہے، تم لوگوں کو ہم یہاں سے بھیجیں گے، وہاں پہ بس پہ بیٹھو، وہاں سے تم لوگوں نے ٹیکسی میں جانا ہے، تو وہ کیسے جاؤ گے؟ لیڈے لے لو، خرید لو، لیڈے خرید لو. وہ جتنے بھی پیسے ہوتے ہیں نا ہمارے پاس، میرے پاس تقریباً کوئی 10,000 پاکستانی پیچھے بچے تھے، پاکستانی روپے جو میں نے چھپا کے رکھے ہوئے تھے. وہ اللہ پاک بھلا کرے، ایک بندے کا اس نے مجھے بتایا تھا کہ ایسے چھپا کے رکھو. میں نے نا شرٹ پہنی ہوئی تھی اسی طرح کی، ایک میری شرٹ تھی، یہاں سے کٹ لگا کے اس کے اندر وہ میں نے پیسے چھپائے ہوئے تھے سارے، کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا، کیونکہ وہ تلاشی لیتے ہیں پھر وہ مارتے ہیں اگر ان کو پیسے نہ دیں. تو پھر انہوں نے وہاں سے ہم نکلے اسی شرٹ سے، وہیں سے کاٹ کے میں نے وہ پٹی باندھ دی. میں نے کہا چلو اور زیادہ سیف ہو جائے گا، پٹی تو کسی نے اتار کے دیں گی نہیں. تو وہ پھر جب ہم وہاں سے چلے تقریباً شام کو 5 بجے چلے، تو آگے انہوں نے ہمیں چلاتے گاڑی کے اندر بٹھایا، گاڑی کے اندر بٹھا کے وہ ہمیں سیف پہ لے گئے. استنبول کے اندر سیف ہوتے ہیں جہاں پہ وہ آپ کو لے سیف میں گئے. سیف میں پھر ہم 9 سے 10 دن رہے ہیں وہاں پہ. وہ آپ کو صبح 1 سومی ملتی ہے، 1 انڈا ملتا ہے، دن کو 1 سومی ملتی ہے، نارمل ناشتہ کروایا انہوں نے، رات کو بھی وہ 1 سومی اور 1 انڈا ملتا ہے. اچھا. وہاں پہ جس کی پیمنٹ کلیئر ہو جاتی ہے اس کو وہ نکال دیتے ہیں. ہاں اگر کوئی مسئلہ بن جائے، بندے پکڑے جا رہے ہو، پھر وہ نہیں نکالتے ہیں. ہماری تو شروع سے پیمنٹ کلیئر تھی، تو وہاں پہ اس لیے ہمارے ساتھ کوئی بھی ایشو نہیں بنا، کچھ پرابلم وغیرہ نہیں کریٹ ہوئی. 9 دنوں کے اندر انہوں نے ہمیں وہاں سے نکال دیا. وہ گھر تھا، وہاں پہ سکون تھا، واش روم وغیرہ بھی تھا، نہانے کی جگہ بھی نارمل رہائش ہے، نماز بھی آپ وہاں پہ پڑھ سکتے تھے، سب سسٹم تھا. جو ایجنٹ تھا وہ ہمارے ساتھ تھا، بابر نام کا ایجنٹ تھا ہمارے ساتھ. تو وہاں پہ بس اس کے ساتھ، اس کے بعد اس نے ہمیں ایک بس میں بٹھا دیا. تو اس بس میں ہم بیٹھے ہیں. وہاں پہ آپ اس بس میں ہمیں بھاگ کے بیٹھنا ہوتا ہے، کھڑے ہو کر آپ نہیں بیٹھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں نا نارمل ایک بندہ، تو وہ کھڑا نہیں کرتے ہیں، وہ آپ کو بھیجتے ہیں 10 لوگوں کو بھیجتے ہیں. 10 لوگوں میں سے 4 سیٹیں اندر ہوتی ہیں، انہوں نے 4 بندے اندر کرنے ہوتے ہیں. جو 4 بندے چلے گئے. وہاں پہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، جو پوائنٹ ہے نا وہاں پہ، کیونکہ جو وہ جگہ ہے نا ماکو پہاڑی، اس کے اندر تقریباً 9ویں مہینے میں برف باری شروع ہو جاتی ہے. وہاں پہ ہم نے تقریباً آدھا سفر برف باری کے اندر کیا. ماکو پہاڑی آگے جو کراس کیا وہ برف کے اندر کراس کیا. آدھا جو ایران میں حصہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. ایران میں جو حصہ ہے وہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے. جو استنبول میں حصہ ہے اس میں ستمبر میں بہت زیادہ جو وہ ویسے بھی علاقے جیسے بہت اونچا علاقہ، پہاڑی علاقہ سارا. پھر وہ اس بس میں ہم بیٹھے، تو اس بس میں بیٹھے، باقی سارے دوسرے ملکوں تھے، ترکے وغیرہ تھے، وہ لے گئے ہمیں. انہوں نے وہ سفر کرتے راستے میں ایک دفعہ پولیس والوں نے گاڑی چیک کی. پتہ نہیں انہوں نے پولیس والوں سے ڈیل کی ہوئی تھی یا کیا چکر تھا، چھوڑ دیا تھا. انہوں نے ہمیں پوچھے گی نہ وہ پولیس والے گاڑی کے اندر انٹر ہوئے ہیں، نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہوا. باہر سے ان سے ڈیل کر لی، ان کو پیسے دیے جو بھی. کہ ہم لوگ جی 1-2 دن کے بعد ہم لوگ استنبول کے اندر پہنچ گئے تھے، مین جو استنبول شہر جو مین سٹی ہے. تو وہاں پہ اس نے پیچھے ہمیں بہت زیادہ پیچھے اتار دیا تھا نا، استنبول سے تقریباً 5-6 کلومیٹر پیچھے اتار دیا تھا. کیونکہ استنبول کے اندر ٹرمینل کے اندر آپ جب جاتے ہیں وہاں پہ پولیس والے آتے ہیں، وہ آپ کو چیک کر لیتے ہیں. تو وہاں پہ پھر ہم نے ایک ٹیکسی والے کو بلایا، جس لڑکے نے آگے ہم سے ہمیں ریسیو کرا تھا. ہاں یہ ہے کہ جو ہم نے استنبول کے اندر سم خریدی تھی نا، وہ استنبول کی وہ ووڈا فون کی سم اوریجنل تھی. میں وہ جب تک استنبول میں رہا ہوں میں وہی چلاتا بھی رہا ہوں. اسے بھی میں نے واٹس ایپ بھی بنایا تھا، سب کچھ اس پہ لوڈ کروا دوں گی. تو پھر ہم نے اس لڑکے کو فون کیا، اس کو ترکش آتی تھی. اب تو ہمیں بھی ترکش آتی ہے، مجھے تو بھی یاد ہے کہ ترکش میں کیسے بات کرتے ہیں، کیا کیا کہتے ہیں.
काफ़ी ज़्यादा पता मुझे वो भी याद है। उसने उससे बात की, उसके कॉल पे एक टैक्सी वाले को रोक के टैक्सी वाले की बात करवाई। इस्तांबुल में भी उन लोगों को इंग्लिश बहुत ज़्यादा काम आती है, इस्तांबुल वालों को भी। तो उस टैक्सी वाले ने हमसे 300 लीरे लिए। तो उसने हमें लड़कों के घर पहुंचा दी जिधर हमने जाना था, पाकिस्तानी लड़के थे। वहाँ पे मेरा एक कज़न भी वहीं उसी घर में रह रहा था। मेरे कज़न ने मेरे लिए कपड़े शपड़े लेकर रखे थे, वो मेरा वेट कर रहा था। तो जब हम गए, मेरी पसंद को उसे पता था मैं चावल कौन से रखा था, तो चावल हम बनाए। मैंने यकीन जाने मोबाइल भाई तकरीबन 5 प्लेटें खाई थी चावल की। उस इतनी भूख थी लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने 5 प्लेटें चावल की एक साथ खाई। तो फिर उसके बाद नहाए धोए हैं, पहले हमने कपड़े शपड़े पहने, दाढ़ी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी, पूरे मौलवी बने हुए थे। बाल शाल कटवाए, नाई के पास सबसे पहले गए, बाल शाल कटवाए, दाढ़ी शाड़ी बनवाई। तो फिर वहाँ पे इस्तांबुल में फिर 3-4 दिन के बाद उसने पूछा काम पे जाना है या आगे जाना है। हमने कहा जैसा आपको मुनासिब लगता है वैसा करना है। अभी तो दिल है कि इस्तांबुल में, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें नज़र आई। फिर वहाँ पे पिछली वाला शुरू हो गया। नहीं, फिर मैंने वहाँ पे थोड़ा सा स्टे किया था। मैंने तकरीबन 2 महीने, पेमेंट तो मेरी क्लियर थी लेकिन मैंने खुद स्टे किया था। क्योंकि इस्तांबुल मैं आपको भी ये कहता हूँ कि अगर आप इस्तांबुल में आते हैं ना, तो यार इस्तांबुल को एक दफ़ा घूम के आइएगा, एंजॉय करिएगा। इस्तांबुल में ब्लू मास्क, उस्मान पाशा, इस तरह के इलाके जो है ना बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही विज़िट करने वाली जगह। मैं तो सारी जगह पे होके आया हूँ, बहुत सारी जगह पे फिर बहुत सारे दोस्त थे अपने, उनके साथ जाते थे, हर संडे को जाते थे, सैटरडे को उनको छुट्टी होती थी। बाकी वहाँ पे मैंने काम नहीं किया, वहाँ मैं रहा फ्री घर के अंदर। वो आपका कज़न था ना इसकी? सारा मोबाइल वगैरह मैं यूज़ करता ना। तो फिर वो जब भी उनको छुट्टी वहाँ पे इस्तांबुल में किया गया, आपको सैटरडे और संडे की छुट्टी ज़रूर होती है। इटली में तो नहीं होती है लेकिन वहाँ पर ज़रूर होती है। तो वो आप लोग इंजॉय करते हैं बहुत ज़्यादा टाइम। वहाँ पे रोज़ों में भी आपको तकरीबन सुबह आप 6 बजे जाते हैं, 3 बजे आपको छुट्टी दे दी जाती है। 6 बजे जाना और 3 बजे छुट्टी। रोज़ों में भी 60 काम करवाते हैं वो आपसे। बाकी तनख्वाह जो है ना, आज आपने स्टार्ट किया ना तो अगले मंथ की इसी तारीख को आपको तनख्वाह मिल जाएगी। इस्तांबुल में ये भी बात बहुत मानने वाली, वो तनख्वाह नहीं कभी भी किसी के लिए चले। ये था हमारा सफ़र। लेकिन यार इसमें आपको ना बहुत ज़्यादा हिम्मत और बर्दाश्त के साथ आना चाहिए। जो बंदा बर्दाश्त नहीं ना कर सकता, जिसके पास उम्र वगैरह बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको ये सफ़र नहीं करना चाहिए। उसको ये सफ़र बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसे भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको वीज़ा वगैरह मिलता है बायर का तो वो ले, कोशिश यही करेंगे यार तरीके से आने। उसमें जान का कुछ भी है, जान का खतरा नहीं है। जान का खतरा, इसमें जान का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। बाकी आप लोग जिसने भी डंकी लगानी है, वो सबसे जो हम लोग सोचते हैं यार हम डंकी लगानी है, हम बहुत ज़्यादा सस्ते वाले बूट खरीद देते हैं, ये बिल्कुल ना खरीदेगा। जो अच्छे शूज़ हो ना, जिसके सोल डबल सोल हो या सिंगल सोल, जिसका ओरिजिनल सोल हो, वो सोल वाले खरीदेगा। क्योंकि मेरे पास जो सोल वाले शूज़ थे ना, वो भी मेरे फट गए थे 2 डंकियों के बाद। दूसरी डंकी में जब मैं पत्थरों पे था, मेरे पत्थरों के अंदर वो शूज़ फाट गए थे और मैं नंगे पाँव आया था। और मुझे आज भी याद है कि जब पाँव पत्थर के ऊपर पड़ता था ना, पत्थर की कोई नोक लगती थी पाँव के अंदर, ओहो एक दफ़ा वाट लग जाती थी बंदे की ना। सही गर्म पत्थर होता था, कभी ठंडा पत्थर। तो बंदा जो है ना अपने कपड़े वगैरह रखे, ज़्यादा कपड़े भी नहीं रखना चाहिए। 2 ट्राउज़र होने चाहिए, शलवार कमीज़ तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि शलवार कमीज़ जो आपकी होती है ना, वो इस सफ़र में आपको बहुत ज़्यादा तंग करती है। आपको बहुत ज़्यादा पहाड़ी से भी गुजरना पड़ता है, आपको झाड़ियों के अंदर छुपना भी पड़ता है। झाड़ियों के अंदर से आपकी कमीज़ आ जाती है, कभी शलवार आ जाती है। जो ट्राउज़र होता है ना, नॉर्मल उसका जो कपड़ा होता है ना, उसका वो कपड़ा स्ट्रेचेबल होता है, उसमें से वो निकल आता है खुद ब खुद। ट्राउज़र हो, 4-5 टी शर्टें रख लें। अपने बैग का जितना वज़न कम पाकिस्तान से आप ला सकते हैं उतना कम लाएं। क्योंकि आगे जाके आपको इसी बैग के अंदर अपने बैग को डबल सिलाइयाँ लगवा लें और अपने बैग में कुछ ऐसे जगह पे पैसे भी छुपा लें जहाँ पे जो पैसे आपके किसी को आगे पता भी ना काम चले। हो। तो बैगों की मुख्तलिफ जगह कटवा के उसके अंदर पैसे छुपा लें। बैग की ज़िप वगैरह जो है उसको ऑयल वगैरह भी लगा लें उसको, ताकि वो काम आपका सही करती रहे, आपको कभी रुकावट ना हो। ज़्यादातर लोगों का होता है बैग टूट जाता है, यार आप एक बंदे का बैग टूट जाए, वो बैग फेंक दे, इतना लंबा सफ़र और विदाउट बैग इम्पॉसिबल है ये सफ़र। आप विदाउट बैग नहीं कर सकते क्योंकि आपके खाने का जितना भी सामान होता है वो आपके बैग के अंदर है। आप कितना एक सामान जो है हाथों में पकड़ लेंगे या अपने पॉकेट्स में डाल लेंगे, मुश्किल हो जाता है वजन उठाना। मैंने बैग के अंदर सामान सारा डाला हुआ था, 2 बोतलें पानी की बैग के अंदर थी
اور جو میں شلوار قمیض لے کے آیا تھا نا، میں نے شلوار کے اندر سے ناڑا نکال کے نا یہاں پہ ناڑا رکھ کے 2 بوتلیں باندھ کے یہاں پہ بھی بوتلیں لٹکا لی تھی کہ یار پیاس بہت زیادہ لیتی تھی. میں نے کہا جتنا پانی ہو سکے اتنا کام ہے. میں اب یہاں پہ بھی ہوں، یہاں پہ اب وہ بین بھائی سے پوچھ لیں کہ یہاں پہ ٹھنڈ بھی ہوتی ہے لیکن میں پانی بہت زیادہ پیتا ہوں. کم سے کم ایک دن میں 2-3 بوتلیں جو ہے نا پانی کی ختم ہو جاتی ہیں. اور وہ تو پھر سفر ہوتا ہے، اور سفر میں آپ کو پتہ ہے پانی کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے. باقی کبھی بھی اپنے گروپ سے علیحدہ نہ ہوئیے گا. اگر آپ گروپ سے علیحدہ ہوں گے تو آپ کے گروپ والے آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. وہ وہاں پہ یہ بالکل نہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کس کے بندے ہیں کیا، کیونکہ وہ لوگ اپنے پیسے لے لیتے ہیں. ایک دفعہ آپ ان کے پاس ریسیو ہو گئے، آپ کے پیسے ان کے پاس چلے گئے، اب آپ جائیں پہاڑ میں، ان کی کوئی گارنٹی کوئی نہیں، مطلب نہیں. آپ کچھ بھی ہو جاتا ہے کوئی مطلب نہیں ہے. ہمارا گروپ جو استنبول سے ہم گروپ بنے تھے نا کے لیے، اس میں سے بھی کافی بندے جو تھے وہ ہم سے سیپریٹ ہو گئے تھے. کئی لوگ پہاڑیوں کے اوپر گم ہو گئے، کئی لوگ کہیں چلے گئے، پھر کافی لوگوں کو بعد میں ڈھونڈ کے لاتے ہیں. اور باقی اللہ کا شکر ہے، میرے ساتھ جو لڑکے آئے تھے ان میں سے ابھی بھی بہت زیادہ استنبول کے اندر ہیں. اور میں اٹلی میں ہوں، اللہ پاک کا شکر ہے اٹلی میں اب بہت زیادہ سیٹل ہوں، اچھا خاصا کماتا ہوں، اچھا خاصا کھاتا پیتا ہوں. تو باقی انشاءاللہ پھر آپ کو مزید اگر کوئی اور بات پوچھنی ہوئی تو کمنٹ میں لکھ دیجیے گا، ضرور بتائیں. تو انشاءاللہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے گی، یہ ولاگ جو ڈنکی والی ہے. تو انشاءاللہ پھر لیکن ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا. اگر آپ نے ڈنکی لگانی ہے تو ویڈیو کو فل اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس میں پوائنٹ کچھ ایسے ہیں جو مجھے سینٹر میں یاد آئے، میں نے سینٹر میں بتایا، جو اینڈ میں یاد آئے اینڈ میں بتایا. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ آپ ویڈیو آپ مکمل دیکھیں. تو انشاءاللہ اللہ حافظ، ملیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.